my ठीक reference है। point are a few things, right? First is the case reports, the tweet which Bar and Bench sent out, right, about the Kerala case. So that's the starting reference point that has caused us to think about uh, how the courts view traditions. That's the first thing, reference point. Other cases like Sabrimala, maybe Dahi Handi case in Maharashtra, those sort of things that have come in news. वो है. Then I've got an important podcast as a reference, which is Pragati podcast, episode 151, where Professor Ashwin Kumar is an academic. So he talked about traditions and how you can question them, what you are allowed to ask, what you are not allowed to ask, without harming the tradition itself, the core of the tradition or the people who follow the. And it is a sociological perspective. And within this tradition's domain, culture, ritual, as well as science, everything comes into that because we are looking at it from a sociological perspective. तो ये मेरे कुछ reference point है. Other than that, I have books which I'll quote. So one is The Weirdest People in the World, Jonathan Haidt's The Righteous Mind, Taleb's books. Right. A question, Avira, before we start the whole thing. Have you looked at it only from the Hindu aspect for it, or do you also do a cross parallel? Ki if the courts are giving such a viewpoint on Hindu traditions, and they are Right. being fair that they will follow the same principles on other religions also, but they may not. So Yeah. if you have done it, fine. Otherwise, we can always pick it up in the next one. Right. So there are 3-4 major perspectives upon which we can talk. So one is the incompetence of the court, which we can talk about. By incompetence mean how they look to cases, how they take cognizance of the cases, their procedures, their number of cases, backlogs, etc., right? There are so many things to talk about. That's another perspective which I'll not touch upon, जिसको मैं टच नहीं करूंगा. इनकॉम्पिटेंस वाला पॉइंट बहुत बड़ा आर्गुमेंट है इनकॉम्पिटेंस का. दूसरा आर्गुमेंट जो आपने नोटिस किया है कि ये डिस्क्रिपेंसी बिटवीन ए टेकिंग नोटिस ऑफ थिंग्स एंड बी एक्टिंग अपॉन थिंग्स बाय कोर्ट्स, राइट? किसी पर्टिकुलर ट्रेडिशन को वो पर्टिकुलरली फोकस करते हैं वर्सेस अदर ट्रेडिशन को लीवे दे देते हैं. तो वो एक चीज आ जाती है आपके सामने, राइट? उसको भी वो मेरा फोकस नहीं है. तो मेरी जो द वे इन विच आई लुक एट इट फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, आई लुक एट ए कल्चर, ritual, and traditions. These are connected as sociological truths. If there is a community, then all these things will be present. And within this domain, sociological domain, science also comes in. Because ये लोग argument देते हैं ना कि these rituals are unscientific. Science as a domain, when we look at it from a sociological perspective, it's a team exercise in space and time. तो वो भी इसके perspective में आ जाता है. There are traditions within the science itself. Slightly different है, लेकिन there are traditions. अच्छा, आपको इसको मिक्स ऑफ हिंदी इंग्लिश रखना है या इंग्लिश व्हाटएवर आप जिसमें भी आप कंफर्टेबल? हाँ, तो एक दो लोगों से पूछ लेते हैं. जनरली हिंदी कंफर्टेबल इन टॉकिंग इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. तो इफ द पीपल आस्क मी तो आई विल स्पीक इन इंग्लिश, इफ द पीपल आस्क मी आई विल स्पीक इन हिंदी. नहीं, हिंदी में ज्यादा रखना ना, क्योंकि हमारी ज्यादा पॉपुलेशन हिंदी वाली है और आई थिंक एम हमारा है कि ये ज्यादा से ज्यादा लोग रिपीट पे भी सुन सके. तो आई थिंक हिंदी का भाव ज्यादा रहे तो अच्छा है. पर वो मिक्स तो रहता ही है यार, हम सारे वो मेट्रोपॉलिटन में ही रहते हैं. शुद्ध हिंदी तो कोई बोलता ही नहीं है जब तक द स्पीकर ना आ जाए. तो जो मैं सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, समाजवादी पर्सपेक्टिव या सामाजिक पर्सपेक्टिव या दृष्टिकोण से देख रहा हूँ, तो उसके परव्यू में, उसकी परिधि में आपका जो विज्ञान है वो भी आ जाता है. क्यों? क्योंकि विज्ञान जो डिसिप्लिन है उसमें जब आप वर्क करते हैं तो दैट्स अ टीम एक्सरसाइज. आप टीम के साथ काम करते हैं. आप पिछले लोगों के काम के ऊपर बिल्ड करते हुए नया काम क्रिएट करते हैं. अब वो पिछला लोगों का जो काम है, चाहे वो ट्रेडिशन से क्यों ना आया हो, मैंने आउट ऑफ द फील्ड ऑफ साइंस, जहां हम लोग करंटली जिसको हम लोग साइंस मानते हैं, उसके बाहर से ही क्यों ना आया हो. फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट गया स्टडी करने के लिए किसी ट्राइब के आसपास, उसने ट्राइब में देखा कि ये लोग कोई हर्ब को यूज करते हैं. वो जाके उसने रिपोर्ट डॉक्यूमेंट किया कि ये लोग हर्ब को यूज करते हैं बीमारी को दूर करने के लिए. फिर वहां से कुछ रिसर्चर्स, मेडिकल रिसर्च वाले लोगों ने देखा कि भाई हर्ब काम किया है, रिसर्च करना शुरू किया और उसके ऊपर बिल्ड किया मेडिसिन. राइट? बहुत सारी मेडिसिन ऐसे खोजी जाती है ऑब्जर्वेशन से.
तो एटलीस्ट पास्ट में बहुत ज़्यादा ये सच था कि बहुत सारी मेडिसिन हमारी वो पास्ट में एक्सपीरियंस वगैरह से ढूंढी गई हैं, लोगों के कल्चरल एक्सपीरियंस, रिचुअलिस्टिक एक्सपीरियंस, इससे ढूंढी गई हैं। यानी अदर देन फील्ड्स जो नॉर्मली साइंस समझी जाती है उससे बाहर से ढूंढी जाती है। तो इसीलिए जब हम लोग साइंस की बात करते हैं तो ये कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड थिंग नहीं है, ये दुनिया की कोई बाहर की चीज़ नहीं है, ये समाज के अंदर में डेवलप हुई है। तो इसके लिए कल्चर और रिचुअल इसका पार्ट हो जाते हैं। वो नॉर्मल हमारे जो कल्चरल रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होते हैं, लेकिन उसके अंदर में भी वो कोर है। तो ये पर्सपेक्टिव हम लोगों को ध्यान में रखना जरूरी है। तो ये नहीं समझने का कि भाई विज्ञान को दुनिया के बाहर की चीज़ है। जब ऐसा डिसिप्लिन, सोशल डिसिप्लिन की बात करते हैं तो वो पर्टिकुलरली वो उसके इसी परिधि में आ जाता है, ट्रेडिशन की परिधि में, जिसके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। ये जो आपका कल्चर या ट्रेडिशन है ये अनसाइंटिफिक है। तो आपका साइंस जो है वो उस डोमेन में आ जाता है, उसके ऊपर भी सवाल हो सकते हैं, और उसके बारे में मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिर हम लोग बात करते हैं ट्रेडिशन जो होते हैं उसके ऊपर अगर आपको क्रिटिसिज्म करना है तो कैसे हो सकता है क्रिटिसिज्म, उसके भी कुछ डोमेन्स होते हैं। तो डॉक्टर अश्विनी कुमार ने दो चीज़ें सजेस्ट की थी। क्रिटिसिज्म आप कर सकते हो उसके ऊपर, लेकिन क्रिटिसिज्म करने के वाजिब तरीके होते हैं। एक, आपको जो नॉर्मल एकेडमिक डोमेन में डिस्कशन करना है, ठीक है, उसके बारे में फिर वो आप देख सकते हो हिस्ट्री क्या है इस ट्रेडिशन की, कैसे आया वो ट्रेडिशन, उसके क्या इम्पैक्ट हैं, अलग अलग सारी चीज़ें आप डॉक्यूमेंट कर सकते हो, उसके बारे में बात कर सकते हो, पर्सपेक्टिव ले सकते हो। और मेन चीज़ है कि उसमें आपको लोगों को इन्वॉल्व करना है। फिर एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि दूसरा, जब आपको ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर ट्रेडिशन से हार्म हो रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हार्म जो प्रूवेबल हार्म है, और वो हार्म ऐसा है कि कई लोगों में ऐसा दिखाया जा सकता है प्रैक्टिकली, या समाज के ऊपर दिखाया जा सकता है, डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है, तब उसके ऊपर आप एक्शन ले सकते हो। तो वो जो डोमेन है जहाँ पे एक्शनेबल डोमेन है वहाँ पे क्रिटिसिज्म अलग टाइप का होगा। वहाँ पे जो दायरा है क्रिटिसिज्म का बहुत लिमिट हो जाएगा, और उसका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो ये होगा कि इस पर्टिकुलर ट्रेडिशन या रिचुअल या एलिमेंट की वजह से समाज को नुकसान हो रहा है, व्यक्तियों को नुकसान हो रहा है। और वो आपका वही आर्गुमेंट काम करेगा। ये आर्गुमेंट नहीं काम करेगा कि इसके कॉज क्या है, इसके रिचुअल के या इस कल्चर के या प्रैक्टिस के कॉज क्या है, चाहे वो कॉज आपको लगता है कि रिग्रेसिव हो, ये हो वो हो, राइट, पेट्रियार्कियल वगैरह वगैरह, वो कुछ भी हो, कॉज मैटर नहीं करता है, रिजल्ट मैटर करता है। जब एक्शन लेने की बात करती है ना, तब सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल प्रिंसिपल्स में देखोगे क्रॉस द वर्ल्ड, सिर्फ और सिर्फ इम्पैक्ट देखा जाता है, कॉज नहीं देखा जाता। आप ये नहीं बोल सकते कि ये अनसाइंटिफिक है, पेट्रियार्कल है वगैरह वगैरह, नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सिक्वेंस की दृष्टि से देखना होगा, परिणाम क्या निकलता है उस ट्रेडिशन का। ये दो डिस्टिंक्शन डोमेन है। जब आप इस डोमेन में हो, जब एकेडमिक रिसर्च के डोमेन में हो, तब आप बिल्कुल उन सारी कॉन्सेप्ट्स की बात करो कि ये पेट्रियार्कल है वगैरह वगैरह, इन सारी चीज़ों की बात। लेकिन जब एक्शन के डोमेन पे जाते हो, जब आप एक्शन की डिमांड करते हो, तब फिर आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है। फिर एक और कॉन्सेप्ट आपके सामने थोड़ा सा रख देता हूँ। वो ये है कि ट्रेडिशन दो तरह के से देखे जा सकते हैं, दो व्यूज हैं ट्रेडिशंस के। एक है ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ ट्रेडिशन, और दूसरा है लर्नेबल व्यू ऑफ ट्रेडिशन। ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ ट्रेडिशन क्या है? ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ ट्रेडिशन ऐसा है कि आप उसको एज एन ऑब्जेक्ट देखते हो, और आप उसके साथ इंटरेक्ट करते हो। अब ऑब्जेक्ट की तरह देखते हो तो मतलब एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि एक एक्सटर्नल व्यू है, आप उसके बारे में उतना जानते नहीं, आपने उसको जिया नहीं है उस ट्रेडिशन को। तो आपका लर्न इंटरनल एक्सपीरियंस जो है उस ट्रेडिशन के बारे में ज़्यादा पता नहीं है आपको, लेकिन आप बाहर से देख रहे हो उसको। तो वो एक उसको ऑब्जेक्ट व्यू बोल सकते हो। दूसरा है लर्न व्यू। लर्न व्यू के अंदर में आपका सवाल ये होता है कि ये ट्रेडिशन को मैं फॉलो कैसे करूंगा, इसकी रिचुअल्स को मैं फॉलो कैसे करूंगा। फिर उसके ऊपर आप वैलिडिटी के ऊपर सवाल नहीं उठाओगे, इस रिचुअल के ऊपर या उस ट्रेडिशन के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर सवाल नहीं उठाओगे, उसको मैं कैसे फॉलो करूंगा, क्या स्टेप्स हैं, वो सारी चीज़ें आप पूछोगे, और वो आप फॉलो करोगे, वो लर्न एक्सपीरियंस के साथ वो आपके साथ जुड़ता है। तो ये दो चीज़ें अलग अलग है। जो क्रिटिसिज्म आता है वो ज़्यादातर जो आप देखोगे ना, वो ऑब्जेक्ट व्यू से आएगा, जो बाहर से लोग देख रहे हैं किसी चीज़ को उनकी तरफ से आता है। और यहाँ पे एक चीज़ और इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो यूनिवर्सलिस्ट पर्सपेक्टिव है, टिपिकली लिबरल आइडियोलॉजी के साथ में एक यूनिवर्सलिस्ट पर्सपेक्टिव माना जाता है कि ये जो प्रिंसिपल है, पर्टिकुलरली अगर आप वेस्टर्न लिबरल हो, तो ये आपका एक कोर अजम्पशन होता है कि ये जो वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल है ये दुनिया भर के लिए अप्लाई किए जा सकते हैं। जो इन प्रिंसिपल से एग्री नहीं किया जा सकता करता है उसका सुधार करना होगा, विल हैव टू करेक्ट देम। और इसी प्रिंसिपल को उठा के ये सारी बातें उठाई जाती हैं कि ये जो आपका ट्रेडिशन है साइंटिफिक नहीं है वगैरह वगैरह, और उसके ऊपर हम ठीक करेंगे, इलाज करेंगे डंडा लेके, है ना।
तो ये कुछ बातें हैं जो आपके सामने हमने रखी है शुरुआत करने के लिए, और इन्हीं इसी फ्रेमवर्क के अंदर में हम लोग ये देखेंगे कि हमारे जो जज साहब लोग हैं वो क्या क्या कहते हैं। तो सबसे पहले वो मैं जो केस था उसके बारे में थोड़ा सा आपको वो बता देता हूँ। जो केरला से आया है हमारा केस, उसका कंटेक्स्ट दे देता हूँ, है ना। तो वो केस ऐसा था कि वहां पे केरला में एक कोई व्यक्ति था, उसने कहीं पे टेम्पल बना लिया था, और लोगों का कहना था कि वो टेम्पल उसने बिना इजाजत लिए बना लिया है, और वहां पे वो एनिमल सेक्रीफाइस कर रहा था। जिससे लोगों का कहना था कि वो परेशान हो रहे हैं। जो मैंने वो पढ़ा केस के डॉक्यूमेंट्स, उसके हिसाब से जो कंप्लेंट्स थी वो ये थी कि लोग उसमें परेशान हो रहे थे, एनिमल सेक्रीफाइस कर रहा था, और वो उन लोगों का कहना था कि उस टेम्पल के लिए उसने कोई अप्रूवल भी नहीं ली है, और वो टेम्पल बना लिया था उसने। और लोगों का कहना था कि शोर शराबा वगैरह होता है, इससे हम लोग परेशान हैं, तो वो उन्होंने ये कंप्लेंट की थी। और उसके बेसिस पे पुराना केस है जो अब तक चल रहा था। तो कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसमें उन्होंने बी आर अम्बेडकर साहब को कोट कर दिया। अब बी आर अम्बेडकर साहब को कोट करते हुए उन्होंने कह दिया कि भाई जो आपके ट्रेडिशंस होते हैं वो रैशनैलिटी के फ्रेमवर्क के ऊपर होने चाहिए। तो इसीलिए आपका जो ट्रेडिशन इरेशनल है या अनसाइंटिफिक है वो हटाया जा सकता है। ये जो कोट है बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। बार बार कोट करते कहते हैं ये डिसीजन में। एक तो एक भारतीय जजेस की एक खास आदत है कि वो शायरी वगैरह कोट करने लग जाते हैं, या यहाँ वहाँ के कोट उठा के डाल देते हैं, पेज भरने की आदत होती है। डिसीजन ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको सीधा सीधा ही लिखना चाहिए, फैक्ट्स ऑफ द केस, उसके बाद में कौन कौन से स्टैट्यूट एप्लीकेबल है, डिसीजन किस बेसिस पे आप ले रहे हैं, क्लियर कट आपको लिखना चाहिए। इतने में हो जाना चाहिए आपका काम, और प्लस आपका डिसीजन और कोई नेक्स्ट स्टेप है। तो ये सारी चीजें जो कोर एलिमेंट्स है वो, उसके अलावा आप कुछ भी लिख रहे हो वो शायरी वायरी लिखने की जरूरत नहीं है। उसका प्रॉब्लम ये होती है वो चीज उठा के लोग कोट कर देते हैं। अदर केसेस में तो कोट करते ही करते हैं। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि इस तरह की चीजें जो अब तरह तरह के मीडिया में कोट होने लग गए हैं, सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स या हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, वो जो है कई सारे पोर्टल्स अब पब्लिक डोमेन में डालने लग गए हैं, और उसके स्निपेट्स काट के, मसालेदार स्निपेट्स काट के निकालने लग गए हैं। होता ये है कि लोग उनको उठा के सोशल मीडिया में फैला देते हैं, और वो नैरेटिव बनाने में लोगों की हेल्प कर देता है। तो इसीलिए आपको कोई भी चीज जो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है वो बोलना नहीं चाहिए, या अपनी जजमेंट पे लिखना नहीं चाहिए। हमारे जजेस लोग अपनी पुरानी आदत से मजबूर है पन्ने भरने की, और वो लिखे जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो हर चीज जो लिख रहे हैं वो अगर विदाउट कंटेक्स्ट कोट कर दी गई, या इवन विद कंटेक्स्ट भी कोट कर दी, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। पर्टिकुलरली सोशल मीडिया नैरेटिव्स के जमाने में, यहाँ से कोई भी एक स्निपेट उठाया लोगों ने कि जज साहब ने अपनी जजमेंट में ये कहा था, नैरेटिव चला दिया, बोले सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है। ऐसा नहीं होता भाई, जज साहब लोग थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। तो ये पन्ने भरने की बीमारी ही है जिसके कारण प्रॉब्लम। अब ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि वो ये लाइन जो कोर्ट है वो पढ़ रहा हूँ, एज ओपाइंड बाय नन अदर देन बी आर अम्बेडकर, ट्रू रिलीजियस प्रैक्टिस शुड बी गाइडेड बाय रीजन, इक्वालिटी एंड ह्यूमनिस्टिक वैल्यू रादर देन ब्लाइंड एडहेरेंस टू ट्रेडिशंस। इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये किसी भी आपके डिसीजन की बेसिस नहीं है। ये जो इसके जो कोर्ट ने इस केस में जो डिसीजन दिया है उसकी बेसिस नहीं है। अब मैं ये कोर्ट फिर से पढ़ रहा हूँ। True religious practice should be guided by reason, equality, and humanistic value rather than blind adherence to traditions. All unhealthy, unscientific, and deleterious practices are to be prevented even if it is done in the name of religion. आपको सुनने में ये मतलब ठीक लगेगा, फिर इनफ आप इन टर्म्स ऑफ आर्ग्यूमेंट आप एग्री भी कर सकते हो, मैं भी इससे काफी हद तक एग्री कर सकता हूँ, लेकिन जब लीगलिस्टिक फ्रेमवर्क के अंदर में जाओगे ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको जो डिसीजन देना होता है वो कॉन्सिक्वेंस के बेसिस पे देना होता है, फिर उसका हिस्ट्री, आइडियोलॉजिकल बेसिस, कहाँ से पेट्रियार्की से आ रहा है वगैरह वगैरह, वो नहीं देख सकते हो या वो कोट नहीं कर सकते हो। राइट, इसीलिए लीगलिस्टिक फ्रेमवर्क के अंदर आप जाएंगे तो इसलिए मैंने दो डोमेन अलग अलग स्पेसिफाई किए थे पहले, कि एक एकेडमिक डोमेन है और एक जो डिसीजन लेने का डोमेन है। जो कोर्ट्स है वो डिसीजन लेने के डोमेन में आती है, उनको इस तरह की चीजें लिखने की बताने की जरूरत नहीं है लोगों को। ये सब एकेडमिक्स का काम है, एकेडमिक्स इसके ऊपर बात करें, फेयर इनफ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। राइट, अनहेल्दी, अनसाइंटिफिक और डिलीटीरियस प्रैक्टिसेस। तो सिर्फ और सिर्फ जो डिलीटीरियस वाला आर्गुमेंट हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ जायज हो सकता है, अनसाइंटिफिक नहीं। कोई ये नहीं होता है, कोई इसका सेंस नहीं बनता है। उसका और भी रीजन है कि अनसाइंटिफिक का क्यों नहीं ले सकते। बहुत पुराना एक आर्गुमेंट है जिसको फिलोसफी के अंदर में ह्यूम्स गिलोटिन कहते हैं, और ये काफी मतलब क्लासिकल आर्गुमेंट है फिलोसफी का, कि फैक्ट्स ऑफ द मैटर आर व्हाट दे आर, दे डू नॉट टेल यू व्हाट टू डू, दैट डिसीजन इज योर्स अलोन। तो इन दोनों के बीच में
कि किसी भी चीज के बारे में जो एक्सप्लेनेशन है, उसके बारे में फैक्ट्स है, वो और एक्शन क्या लेना है, इनके बीच में गहरी खाई होती है। और वो खाई को जो सेपरेट करती है उसको ह्यूम्स गिलोटिन कहते हैं। इसको आप जंप नहीं मार सकते यहाँ से वहां विदाउट एजेंसी, विदाउट जिम्मेदारी लिए। आप ये नहीं बोल सकते कि साइंस के हिसाब से ये सही है इसलिए ये होना चाहिए, नहीं। जो आप एक्शन ले रहे हैं वो आप जिम्मेदार हैं, वो आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साइंस विल नेवर टेल यू व्हाट टू डू। साइंस विल टेल यू व्हाट आर द फैक्ट्स। फैक्ट्स ऑफ द मैटर क्या है, वहां तक साइंस का डोमेन रुकता है। आप उसको खींचने की कोशिश मत कीजिए, वो साइंटिफिक साइंटिज्म हो जाता है फिर मामला। ठीक है, वो पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल बिलीफ हो जाता है, उसमें नहीं जाना है कहा। तो इसीलिए ह्यूम्स गिलोटीन जो है उसको जंप मारने की कोशिश मत कीजिए। तो ये स्टेटमेंट कहना कि भाई कोई प्रैक्टिस अनसाइंटिफिक है, सेल्फ इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, पर्टिकुलरली जब आप एक्शनेबल लॉ के डोमेन में काम कर रहे हैं, जब आप जजमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं किसी चीज के ऊपर, तो ये इस तरह की चीजें कहना बहुत गलत बात है। एकेडमिक डोमेन में है तो आप कह सकते हैं, एकेडमिक फ्रीडम के अंदर आता है। जुडिशरी की फ्रीडम लिमिटेड है, कुछ भी नहीं कह सकते वो लोग। तो यहाँ पे हम लोगों को बिल्कुल क्लियर होना है। कुरान साहब आ गए हैं, उनको वो कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ओके, आज थोड़ा सा वो हो गया ना, आज वो ट्रेन क्रैश का भी हुआ है ना, तो हाँ देयर हाँ। वर बिग स्पेसेस रनिंग, तो उसमें हमारे ऑडियंस बढ़ गए। I had around 33 people who had 32 people who had said they are coming। वो ट्रेन वाले के चक्कर में ना, वो दिन मैसेज स्प्लिट, पर ठीक है, there's no problem। फेयर इनफ। वो ये दिस विल बी रिकॉर्डेड क्योंकि वंस, वो लोगों को लोग पता है आराम से रिकॉर्डेड सुन है सकते ना, they हैं। can हाँ, listen to it later on। मैं उसको अपने चैनल पे भी डाल दूंगा। हाँ हाँ। क्योंकि बहुत हार्ड डिस्कशन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह डिस्कस होंगे, तो हो सकता है इसमें टाइम लगेगा लोगों को पिक करने के लिए। मैं खुद जब व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग तो मुझे कई सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिल गई। ये जो दो डोमेन वाला कॉन्सेप्ट है कि आप एकेडमिक डोमेन में क्रिटिसिज्म कर सकते हो, आइडियोलॉजिकल लेवल पे भी क्रिटिसिज्म कर सकते हो प्रैक्टिस पर, लेकिन आप जजमेंट के पीछे जाते हो, जब उस डोमेन में जाते हो, तो वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि उसका नुकसान क्या है, और नुकसान प्रूवेबल है कि नहीं, उसके ऊपर एक्शन लेना है। और ये जॉन स्टुअर्ट मिल का हार्म प्रिंसिपल है। ये भी बहुत शानदार प्रिंसिपल है, वेल नोन प्रिंसिपल है। अ, एक लिबरलिज्म के अंदर में इवन जो जुडिशरी या जस्टिस का प्रिंसिपल है उसमें भी काउंट किया जाता है हार्म प्रिंसिपल, कि कोई भी प्रैक्टिस जो है उसके ऊपर समाज तब तक एक्शन नहीं लेगा जब तक कि वो मेजर नुकसान कॉज नहीं करती है, वो नुकसान प्रूवेबल होना चाहिए। बिना नुकसान के आप एक्शन नहीं करेंगे सिर्फ और सिर्फ ये बोल के कि कोई प्रैक्टिस रूढ़िवादी है, रिग्रेसिव है, इसलिए हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे, नहीं। एक्शन तब लेंगे जब आप ये नुकसान देखेंगे, और नुकसान टेंजिबल होना चाहिए, प्रूवेबल होना चाहिए। इवन अगर साइकोलॉजिकल नुकसान है उसको भी प्रूव किया जा सकता है, तो उसके लिए एविडेंस चाहिए आपको। उसके बिना फिर आप सिर्फ और सिर्फ ये बोल के कि पेट्रियार्कल प्रैक्टिस है हम इसको खत्म करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। लॉ के डोमेन में, एक्शनेबल लॉ के डोमेन में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज जो, ये डिस्टिंक्शन है, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। और ये हमारे जुडिशरी वाले लोगों को, मुझे लगता है जो उनके स्टेटमेंट्स हैं वो देखकर, कि ये इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है हाँ प्रिंसिपल का। क्योंकि वो कमेंट ऐसे कर देते हैं चीजों के ऊपर कि प्रॉब्लम हो जाती है। स्टेटमेंट डिसीजन तो देते हुए चलो ठीक है, लॉ स्टैट्यूट कोट करते हैं, फेयर इनफ, लेकिन जब वो स्टेटमेंट्स देते हैं उसके साथ में जुड़े हुए कमेंट्री करने जाते हैं, तो वहां पे वो मतलब दे शिट द बैड, हक देते हैं। ऑनेस्टली कहें तो वो थोड़ा सा उनको मतलब अपना काबू करना पड़ेगा, सेंसर करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट होती है, और वो लगातार वो डॉक्यूमेंट जमा होते हैं, उसको कोट किया जाता है, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। कुरान साहब से भी थोड़ा सा एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, ओपनिंग स्टेटमेंट थोड़ा सा। हाँ, हेलो। हेलो। जी साहब। जी, तो मैं ये एक वो वोल्टेयर का बार बार वो स्टेटमेंट मेरे दिमाग में आता है कि दोज हु बिलीव इन एब्सर्डिटीज कमिट एट्रोसिटीज। तो अब क्या आप ये चीज ले सकते हैं, मतलब जुडिशियरी अगर कोई डिसीजन ले रही है, ये स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए, अगर कोई एब्सर्ड बिलीव्स है, तो ये कोई इम्पेंडिंग एट्रोसिटीज की तरफ नहीं जा सकते। जैसा कि आप वो दिल्ली में आप जो देख रहे हैं ना, वो जो सुसाइड केस हुआ था, देखिए मास सुसाइड केस हुआ था, उसमें क्लियरली आई मीन देयर वाज दिस इंसेन गाय, बेचारा वो इंसेन था, और उसकी बहुत ट्रेजेडी हुई थी उसकी जिंदगी में। तो देयर वाज दिस मेंटल केस इशू, और मेंटल केस इशू के साथ साथ एक और एक चीज यहाँ पे देखने को मिली कि अंधविश्वास भी था। अंधविश्वास एंड मेंटल इश्यूज दोनों भी है। मैं एक नहीं बोल रहा हूँ कि भाई जी बस अंधविश्वास की वजह से ये पूरा का पूरा मास सुसाइड हुआ, नहीं। उसके साथ एक बंदा था जो इंसेन भी था, जिसको मेडिकल हेल्प की जरूरत थी, जिसको मेंटल हेल्थ केयर की जरूरत थी। ये दोनों मिला के हुआ है, और कहीं ना कहीं अंधविश्वास का भी हाथ था इसमें। तो इस पे आप क्या बोलेंगे सर, क्या करना तो चाहिए? सिर्फ सिंपल है इसका आंसर, जुडिशियल फ्रेमवर्क के अंदर में, लीगल फ्रेमवर्क के अंदर में ये है कि ये जो स्टेटमेंट है, दोज हु बिलीव इन fallacies या those who believe in basically एब्सर्डिटीज। absurd things,
आर लाइकली टू कमिट एट्रोसिटीज, ये जुडिशरी एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकती है जुडिशरी। जुडिशरी एक्शन नहीं ले सकती अनलेस कोई स्पेसिफिक स्टैट्यूट हो जो ये डिस्क्राइब करता हो कि इस तरह का कोई एब्सर्डिटी है, उसके ऊपर आपको एक्शन लेना है। इन जनरल जुडिशरी इस तरह की चीजों के ऊपर एक्शन नहीं ले सकती अनलेस समथिंग हैज बीन कमिटेड। आप ये कह सकते हो कि क्योंकि वो प्रूवेबल होता है ना, प्रूव करना होता है ये चीज हुई है। सिर्फ कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें सेडिशन का केस एक ऐसा है जहाँ पे आप ये कह सकते हो कि हाँ दोज हु आर लाइकली टू बिलीव इन अब्सर्डिटीज वाला वो कॉन्सेप्ट वहाँ पे लागू हो जाता है, क्योंकि उससे पहले वो सेडिशियस स्पीच जो होती है वो पर्टिकुलर सेक्शन की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर में वो है कि अब्सर्ड बिलीफ को आप लोगों के सामने प्रेजेंट करते हो तो वो उस केस में आप धर ले जाते हो लॉ के द्वारा। लेकिन दैट्स अ स्पेसिफिक स्टैट्यूट। इन जनरल वो ये होता है कि जब तक कि कोई हार्म, विजिबल हार्म दिखाई नहीं दे रहा है तब तक एक्शन नहीं ले सकते, नहीं तो मामला वो हो जाता है प्री क्राइम टाइप का हो जाता है कि आप शक की बिना पे किसी को धर लिया। वो जुडिशरी नहीं करना चाहिए, करना चाहती नहीं है, नहीं करना चाहिए। राइट, तो हमारी प्रिडिक्टिव पावर्स इतनी ज्यादा नहीं है कि हम लोग ये प्रिडिक्ट कर वो सकते प्रॉब्लम है हैं। सर में, मतलब कभी कभी क्या होता है दिखता नहीं है हमको, और जब कोई इशू हो जाता है जब पता चलता है। हाँ, लेकिन वो हाथ बंधे हुए हैं करंट हाँ, लीगल फ्रेमवर्क के अंदर में, हाथ बंधे हुए हैं। जैसा पूछिए। कि भैया अब आप एस्ट्रोलॉजी को तो बैन नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज इट इज एब्सर्ड बिलीव कि ऐसा होता हाँ, है लेकिन unscientific है। उससे भी बड़ा प्रिंसिपल मैंने सामने रख दिया है ना कि दो डोमेन है हमारे पास क्रिटिसिज्म के, एकेडमिक डोमेन है और डिसीजन मेकिंग का डोमेन है। हम्म, एकेडमिक डोमेन में आप किसी भी ट्रेडिशन को क्रिटिसाइज कर सकते हो और उसके कॉजेज को पकड़ के भी क्रिटिसाइज कर सकते हो, कॉजेज को भी एनालाइज कर सकते हो, उसकी हिस्ट्री को भी एनालाइज कर सकते हो, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी एनालाइज कर सकते हो, रिजल्ट्स को भी एनालाइज कर सकते हो, कॉन्सिक्वेंसेज और मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेज को एनालाइज कर सकते हो। ये सारी फील्ड्स मैंने दी हैं आपको एकेडमिक डोमेन में डिस्कशन करने के लिए। उसके ऊपर बिल्कुल पेपर लिखिए, चर्चा कीजिए, पब्लिक डोमेन में पॉडकास्ट करिए, चाहे तो मतलब रैली भी निकाल सकते हैं उसके ऊपर, धरना प्रदर्शन जो करना कीजिए। लेकिन जब बात जुडिशियल एक्शन की आती है वहां पे सिर्फ एक चीज देखी जाती है, हार्म प्रिंसिपल। इस चीज का नुकसान क्या है, उसके ये कॉज हाफ नहीं देखे जाएंगे, ओके उसके ये कॉजेज नहीं देखे जाएंगे, उसके पीछे आइडियोलॉजी क्या है वो नहीं देखी जाएगी। अनसाइंटिफिक है, पेट्रियार्कल है, भाड़ में जाए सब। जुडिशरी को जिस चीज से मतलब होता है वो है इसका हार्म क्या है। जी आई साहब। मेरा तो बस वही है कि कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट डाली है, अभी हम स्पीकर रिक्वेस्ट लेंगे व्हेन आयो फिनिशेस, उसके बाद तो अपने क्वेश्चंस लिख लीजिए जस्ट दैट कि अदरवाइज दिस फ्लो विल ब्रेक। कंटिन्यू सर। हाँ, मैं एक लास्ट एक क्वेश्चन पूछ लूं क्या, देन यू कैन हाँ हाँ, कंटिन्यू। नहीं आप तो को होस्ट हो सर इसके, आप दोनों की नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ऊपर टाइटल में आपका नाम है सर। चलो ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर एक अब आप अगर हार्म की बात करें, हार्म प्रिंसिपल की बात करें, तो एक सब्जेक्टिविटी भी आ जाती है, एक इंडिविजुअल हार्म भी आता है, कलेक्टिव, मतलब इसमें क्या यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल आएगा क्या? जब आप हार्म देख रहे हैं तो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल के हिसाब से देखेंगे क्या इंडिविजुअल हिसाब से देखेंगे? लाइक फॉर अब इंस्टेंस दो भाई मेरे फादर के कोई अजीबो गरीब, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, लेट्स अज्यूम कि भाई मेरे फादर के कुछ अजीबो गरीब बिलीफ सिस्टम थे which actually caused me a lot of psychological problems हाँ that screwed up my life, and then there is another thing which is utilitarian, तो हार्म प्रिंसिपल में क्या आएगा यार? हाँ, हार्म प्रिंसिपल में देखिए कोर्ट क्या चीजें एविडेंस के बेसिस पे लेता है। साइकोलॉजिकल हार्म को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है अगर हम लोग उसका प्रूफ ले आए। राइट, और चूंकि एक्शन लेना है तो दो लेवल पे एक्शन ले सकता है, इंडिविजुअल लेवल पे, कलेक्टिव लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल पे आपका केस साइकोलॉजिस्ट देखेगा, वो रिपोर्ट बना के देगा, उसके हिसाब से एक्शन लेगा। लेकिन जब कलेक्टिव लेवल पे एक्शन लेना है, किसी प्रैक्टिस के ऊपर एक्शन लेना है, तो फिर वो बहुत लंबी स्टडी की जरूरत पड़ेगी, उसको ट्रेंड देखना होगा, उसको हो सकता है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उस हिसाब से एक्शन होगा कलेक्टिव लेवल पे। डेटा बहुत ज्यादा चाहिए होगा कोर्ट को वो डिसीजन लेने के लिए। तो इंडिविजुअल केस को पकड़ के कलेक्टिव पे लगाना वो बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा, वो नहीं करेगा। पर्टिकुलरली ऐसे केसेस में जहां हार्म जो है वो साइकोलॉजिकल है या आसानी से दिखाई नहीं दे रहा है, टेंजिबल हार्म है जो दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर तो चलिए एक्शन ले सकती है कोर्ट, क्योंकि उसके बारे में डेटा मौजूद है, एविडेंस मौजूद है। राइट, ये जो सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स हैं साइकोलॉजिकल हार्म, जैसे बच्चों की कुटाई करने वाला था, स्कूल में पहले बच्चों की कुटाई हो जाती थी, राइट, लेकिन उसके ऊपर अब एक्शन हुआ, कोर्ट्स में भी केसेस हुए और लॉ भी बना बाद में। लेकिन इन दोनों चीजों के लिए बहुत डेटा गैदर करना पड़ा, राइट, कि क्या क्या हार्म है। और वो हार्म को बिल्कुल आपको, जो हार्म को जब बताने के लिए जाते हैं तो आपका जो डोमेन है बहुत स्मॉल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि उसका आसानी से क्रिटिसिज्म ना किया जा सके, उसको काटा ना जा सके। क्योंकि और जो दूसरे अगर आप बताने की कोशिश करोगे दूसरे ग्राउंड्स किसी प्रैक्टिस को रोकने के लिए, तो बड़े आसानी से उसको बोल सकते हैं चलो ये करेक्ट कर देते हैं, ये करेक्ट कर देते हैं, ये करेक्ट कर देते हैं, इसका समाधान कर देते हैं। हार्म एक ऐसी चीज है जिसका आप समाधान नहीं कर सकते हो। तो वो जो आपका क्रिटिसिज्म है जुडिशियल डोमेन में, जब आप क्रिटिसाइज करने के लिए जाते हो किसी चीज को या एक्शनेबल डोमेन में, तो आपका जो क्रिटिसिज्म बहुत पॉइंटेड होना चाहिए और वो हार्म के ऊपर फोकस होना चाहिए, वो डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको डेटा एविडेंस चाहिए। तो आई होप ये थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा लोगों को कॉन्सेप्ट। राइट, अब आप ये जो प्रिंसिपल अब आपको पता चल गया है, अब आप जुडिशरी के डिसीजन उनके स्टेटमेंट्स के ऊपर अप्लाई करके देखिएगा, आपको मतलब निराशा होगी जब ये प्रिंसिपल्स
आप एप्लीकेबिलिटी या इवन जो आपके सो कॉल्ड रैशनलिस्ट होते हैं उनके ऊपर भी जब आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे ये प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स, तो आपको थोड़ी निराशा होगी। आपको लगेगा कि यार ये क्या है, मतलब इन्होंने इतना भी नहीं सोचा है ना। तो ये एक चीज अब हमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी होगी। तो मैंने एक आपके सामने एक जो केस रख दिया था वो ये था जो केरला हाई कोर्ट का था। तो फिर बाद में उन्होंने वो केस को देखते हुए फिर फैसला दे दिया कि ये जो प्रैक्टिस है एनुअल सेक्रीफाइस की वो इनवैलिड है। और उसके पीछे उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 25 इसको प्रोटेक्ट नहीं करता क्योंकि ये हार्म पहुंचाता है सोसाइटी को। और किस चीज के अंदर उन्होंने रोका है, जो हार्म को कोट करते हुए आर्टिकल 21 जो आपकी लाइफ, राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी जो है उसको गारंटी करता है। तो उन्होंने हार्म को मेन रीजन कोट किया है इवन इस जजमेंट के अंदर में भी, जो कंट्रोवर्शियल जजमेंट जिसके स्टेटमेंट्स जो है, लेकिन उन्होंने बीच में वो अनसाइंटिफिक वाला वर्ड जबरदस्ती डाल के कचरा करा लिया। जिस बेसिस पर उन्होंने डिसीजन दिया वो आर्टिकल 21 है जो हार्म प्रिंसिपल के ऊपर बना हुआ है कि आपके पर्सनल लाइफ लिबर्टी को नुकसान होगा तो फिर कोर्ट इंटरवीन करेगा। बिल्कुल हार्म प्रिंसिपल का परफेक्ट एग्जाम्पल है। आपको जुडिशियल रेमेडी चाहिए किसी चीज के खिलाफ तो आपको ये आर्टिकल 21 कोर्ट करना होगा, ना कि कोई आइडियोलॉजिकल बेसिस के पेट्रियार्कल प्रैक्टिस है वगैरह वगैरह, नहीं, या कोई जातिवादी प्रैक्टिस है, नहीं, ये नहीं कोट करना है। आपको आर्टिकल 21 का हवाला देना है, आर्टिकल 15 का हवाला देना है, ये सारी चीजों का हवाला देना है क्योंकि वो हार्म को डायरेक्टली एड्रेस करते हैं। इवन जो कोर्ट अपना जो जजमेंट दे रहा है उसके अंदर भी उन्होंने सीधा आर्टिकल 21 को कोट किया है, लेकिन जो उन्होंने ऊपर अम्बेडकर साहब का जो स्टेटमेंट दे दिया वो उसने फालूदा कर दिया, कचरा कर दिया है। इसीलिए ज्यादा जजमेंट के अंदर में लिखना बहुत नुकसानदायक है। सबरीमाला केस को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। सबरीमाला केस में ये था, कोर्ट के केस के जो फैक्ट्स थे वो ये थे कि सबरीमाला टेम्पल जो है अयप्पा, लॉर्ड अयप्पा का टेम्पल है, वहाँ पे जो मेंस्ट्रुएटिंग एज की विमेन है उनको जाने नहीं दिया जाता था कि ये माना जाता है कि लॉर्ड अयप्पा ब्रह्मचारी हैं, तो इसीलिए उनके टेम्पल के अंदर में मेंस्ट्रुएटिंग वुमन को अलाउड नहीं किया। तो अब विमेन्स राइट्स ग्रुप ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया था और फिर वो यही कि हमको जाने नहीं दिया जा रहा है, ये हमारे पर्सनल लाइफ का हनन है, राइट, हमारी रिलीजियस फ्रीडम जो है उसको रोकता है। यानी आर्टिकल 25 को उन्होंने कोट किया, इवन आर्टिकल 21 को भी कोट किया था, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने जो आइडियोलॉजिकल स्टेटमेंट बहुत सारे दे दिए कि ये प्रैक्टिस पैट्रियार्कल है वगैरह वगैरह, जो कि जरूरी नहीं था। जब आप लीगल फ्रेमवर्क में जाते हो तो ये जरूरी नहीं है, एकेडमिक फ्रेमवर्क में आप रहे हैं तो बिल्कुल आप बात कर सकते हैं इस तरह की चीजों के ऊपर। अब सवाल ये उठता है कि कोर्ट जब जजमेंट देने जा रहा था तो उसने फिर ये उसको क्यों नहीं देखा कि हार्म क्या है। क्या ये वो उन्होंने प्रूव किया कि मतलब जो महिलाएं वहां नहीं जा सकती है उनके ऊपर कोई ऐसा टेंजिबल हार्म है। तो ये सवाल या निशान खड़ा होता है उस जजमेंट के ऊपर कि उस टेम्पल में नहीं जाने से कोई ऐसा हार्म है। तो ये प्रश्न उठता है क्योंकि फिर वो आर्टिकल 25 को कोट करके बोलेंगे कि देखिए जी प्रैक्टिसेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस आपको अलाउ कर सकते हैं। फिर उसके ऊपर फिर वो एक और चीज देंगे, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का एक नया उन्होंने शिगुफा छोड़ रखा है कि कोई प्रैक्टिस जो है अगर वो टेक्स्ट में लिखी हुई है और उसका रिकॉर्ड है हमारे पास और वो उस फेथ का या उस बिलीफ सिस्टम का होने के लिए, एग्जिस्ट होने के लिए जरूरी है तो उसको एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस माना जाएगा, उसके बिना हम उसको मानेंगे नहीं। ये एक नया उन्होंने बोगी खड़ा किया है सिर्फ इस चीज को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि वो आर्टिकल 21 यानी हार्म प्रिंसिपल के बेसिस पे डिसीजन नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये बीच में डाला है ये नया शिगुफा। जब भी आप इस तरह का पर्टिकुलरली कल्चर या रिलीजियस प्रैक्टिसेस के ऊपर जब आप वो देखोगे, कोर्ट केसेस देखोगे या पब्लिक डोमेन में डिबेट देखोगे ना, तो वो लोग ये आर्गुमेंट ले आते हैं, कोर्ट वाले लोग, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस वाला। दैट्स बोगस आर्गुमेंट, वो मैटर नहीं करता है। पर्टिकुलरली जब आपको डिसीजन देना हार्म के बेसिस पे, तो फिर आप इस तरह की चीजों को लाई क्यों रहे हो बीच में, सिर्फ इसलिए कि आपको आपने आर्टिकल 25 में ये लिख रखा है कि आपको लोगों को अलाउ करना है वगैरह वगैरह प्रैक्टिसेस, लेकिन वो मैटर नहीं करता अनलेस आप हार्म प्रूव कर सकें। अगर हार्म प्रूव हो रहा है तो फिर आर्टिकल 25 नीचे दब जाता है। आर्टिकल 21 जो है, जो हार्म प्रिंसिपल के ऊपर में है कि नुकसान हो रहा है तो समाज, जुडिशरी, ये सब इंटरवीन करेंगे, वो सुपरसीड्स दैट। अब ये ईआरपी वाला जो आर्गुमेंट है ना, बोगस आर्गुमेंट इसलिए है क्योंकि भारत के अंदर में बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं जिनमें, या कस्टम्स है या फेथ सिस्टम है जिसके अंदर में आपका ट्रेडिशन जो होता है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं है। कोर्ट इसलिए उनको नकार देता है कि ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं, सिर्फ इस ग्राउंड्स पे। ऑन द अदर हैंड जो वेस्टर्न फेथ्स वगैरह होंगे या इंडिया के बाहर के जो फेथ्स हैं उनमें पर्टिकुलरली चीजें डॉक्यूमेंटेड होती हैं। आप उसको एब्सर्डिटी कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन वो आपको मिल जाता है डॉक्यूमेंट। अब वो लेके बोल देते हैं कि ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, मतलब इसको एक आर्गुमेंट है, उसके ऊपर भी बातें होती है, लेकिन एटलीस्ट एक ग्राउंडिंग रहती है जिसके ऊपर वो बात करते हैं। ये सारी चीजें बोगस है कंप्लीटली। अगर आप लीगलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो इंटायरली प्रीमाइस ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इज बोगस।
जब आप इसके ऊपर बात कर रहे थे बुरखा के ऊपर, तो वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस मान के चल रहे थे, जबकि आपको उससे नुकसान आपको दिख रहा है, टेंजिबल नुकसान आपको दिख रहा है सोसाइटी के अंदर में। उस प्रैक्टिस से सोसाइटी के अंदर में आपको टेंजिबल नुकसान दिख रहा है, लेकिन आप उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है कि नहीं। तो इसीलिए ये बोगस आर्गूमेंट है, ये रेड हेरिंग है। क्या लाल बत्ती देकर आपको दौड़ा दिया उसके पीछे, उसके ऊपर वर्क करना नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपको हार्म के ऊपर फोकस रखना चाहिए। पर्टिकुलरली अगर आप इवन अगर आप एकेडमिक डोमेन में भी आप डिबेट करने के लिए जा रहे हैं, तो एटलीस्ट हार्म को फोकस में रखें, वो डिनाई नहीं किया जा सकता आसानी से। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैं हाईलाइट करना चाहता था। क्विकली मैं आपके पास कुछ चीज़ें, मैं जो मैंने पॉडकास्ट से, डॉक्टर अश्विनी कुमार के पॉडकास्ट से मैंने लर्न की, तो इसमें मैं सोर्स को कोट कर देता हूँ आपके लिए, क्योंकि आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। ये एक्चुअली आई ओपनर पॉडकास्ट है, क्योंकि इसमें ट्रेडिशंस को सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखा गया है, जिसके अंदर में ट्रेडिशंस आपके साइंटिफिक ट्रेडिशंस भी आ जाते हैं, यानी डोमेन ऑफ साइंस के अंदर में भी ट्रेडिशन होते हैं, और दोज ट्रेडिशंस डिफेंड देमसेल्फ एज सिवियरली एज फियर्सली, जैसे नॉर्मल कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो खुद को डिफेंस जिस तरह से करती हैं, उसी तरह से साइंटिफिक डोमेन के अंदर में भी डिफेंस होता है चीज़ों का, उस प्रैक्टिसेस का, कल्चर प्रैक्टिसेस का डिफेंस होता है। वहाँ पे भी यूनिवर्सलिज्म और एक तरह से आप ये कह लीजिए लोकलिज्म, दोनों ही फैक्टर्स हैं। यूनिवर्सलिज्म थोड़ा ज़्यादा जोरों पे चलता है, लेकिन ये दोनों डोमेन है, वहाँ पे भी ये फाइट्स होती हैं। उन्होंने एग्जाम्पल कोट किया था, नोम चॉम्स्की की जो लैंग्वेज थ्योरी है, वो शुरू में मानी जाती थी कि यही सत्य है, यही ट्रुथ है, लेकिन जैसे जैसे जानकारी आगे आने लगे, तो आप नोम चॉम्स्की की लैंग्वेज थ्योरी वही है कि ह्यूमन बीइंग लैंग्वेज कैसे लर्न करता है, उसके बारे में उन्होंने एक थ्योरी दी है, जो कि काफ़ी अप्रिशिएटेड है एकेडमिक सर्कल्स में। वो पहले माना जाता था कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है, लेकिन जैसे जैसे और रिसर्च होती गई, तो वो चैलेंज होने लग गई थ्योरी। और ये अब देखा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से ये एक तरह से प्रूव हो गया कि अदर मैकेनिज्म, जो चोम्स्की की थ्योरी, उसमें जो मैकेनिज्म बताया कि लैंग्वेज लर्न किया जाता है, उसके अलावा बहुत सारे अदर मैकेनिज्म हो सकते हैं जिसके थ्रू लैंग्वेज लर्न की जा सकती है। तो बहुत सारे तरफ से चैलेंज आ गए इस थ्योरी को। तो चैलेंज आने के बाद थ्योरी वाले लोगों ने पहले तो ये डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे कि ये बोगस है, आपका जो काउंटर आर्गुमेंट है, जो क्रिटिसिज्म है, बोगस है वगैरह वगैरह, ये फाइट हो रही थी। तो वो अपनी टेरिटरी डिफेंड कर रहे थे चोम्स्कियन लोग, क्योंकि कई सारे लोगों का रोजगार वगैरह उससे जुड़ा हुआ था, कई सारे लोगों की एकेडमिक करियर जुड़ा हुआ था उससे, उस थ्योरी से। तो इसलिए उसको डिफेंड किया जाता है। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये दैट्स अ ह्यूमन सोशल प्रैक्टिस, साइंस, द फील्ड ऑफ साइंस इटसेल्फ, और उसको डिफेंड किया जा रहा था। अब हो ये रहा है कि इतना एविडेंस माउंट होते जा रहा है उसके अगेंस्ट, तो वो उसका डोमेन जो है वो छोटा करते जा रहे हैं, इस स्पेसिफिक केस में एप्लीकेबल है वगैरह वगैरह इस तरह से। तो उसका जो पहले डोमेन था कि सब तरफ एप्लीकेबल है, सब टाइम एप्लीकेबल है, वो छोटा होते जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आ गई, पर्टिकुलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद, जिसके अंदर में लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, जो आप ये देखते हो ना, चैट जीपीटी वगैरह जो है, वो अलग तरीके से लैंग्वेज लर्न करते हैं, ह्यूमन की तरह नहीं करते हैं। दे हैव अ डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग लैंग्वेज। तो इसीलिए चोम्स्की की थ्योरी का जो स्कोप है, डोमेन है, बहुत छोटा हो गया है, और वो केस स्पेसिफाई करते हैं। हो सकता है फ्यूचर में एक छोटा सा केस बन के रह जाए, बट जो उसमें बिलीव करते हैं वो एक फेथ की तरह उसको बिलीव करते हैं, और उसी तरह से डिफाइन भी करते हैं, उसी तरह से उस प्रैक्टिस को, उसके वहां उस थ्योरी के अंदर जिन लोगों ने वर्क किया है, तो उससे जो जुड़े हुए हैं ना, उनके लिए वो लर्नड एक्सपीरियंस है, लर्नड व्यू ऑफ ट्रेडिशन है वो। जो उसके बाहर है, जो क्रिटिसाइज करना चाह रहे हैं, उनके लिए वो ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ ट्रेडिशन हो सकता है। तो विद इन द डोमेन ऑफ साइंस ये दोनों व्यू एग्जिस्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव व्यू, जिसमें आप किसी प्रैक्टिस ट्रेडिशन को ऑब्जेक्ट की तरह देखते हो, उससे इंटरेक्ट कर सकते हो, उसका मे बी आप कनेक्शन दे सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो एज एन ऑब्जेक्ट, लेकिन लिव्ड एक्सपीरियंस के अंदर में आप उसके अंदर जीते हो, और ये सवाल पूछते हो कि इसको मैं फॉलो कैसे करूं, क्या रूल्स हैं, ये सारे सवाल पूछते हो। ऑब्जेक्ट व्यू में आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हो, आप उसको सवाल या निशान उठा सकते हो, ये स्लाइटली डिफरेंट है, राइट। तो चोम्स्की की थ्योरी के अंदर में भी आपको ये दिख रहा है कि चोम्स्कियन जो लोग हैं, वो लिव्ड एक्सपीरियंस के साथ में जी रहे हैं, या लिव्ड व्यू जो है उसके साथ जी रहे हैं उस थ्योरी के एज अ ट्रेडिशन, और जो अदर डोमेन वाले हैं वो उसको ऑब्जेक्ट की तरह देख रहे हैं। एक और चीज यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि ऑब्जेक्ट व्यू जो है ना, उसके साथ में एक पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ डोमेन जुड़ा हुआ है, ये डोमेन ऑफ अंडरस्टैंडिंग जुड़ा हुआ है, जिसको जोसेफ हाइनरिक की किताब वियर्डेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, इसमें डिस्क्राइब किया गया है। तो जोसेफ हाइनरिक ने ये किताब लिखी थी कि वेस्टर्न इंडस्ट्रियल डेमोक्रेटिक, ठीक है, ये कुछ तरह के लोग जो हैं, इस कैरेक्टरिस्टिक में रहने वाली कॉकेशियन पॉपुलेशन आप ये मान सकते हो, ज्यादातर वेस्टर्न वाइट इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक, सॉरी, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेट। हम्म। और ये लोग जो है एकेडमिया वगैरह में बहुत ज्यादा हावी हैं, और इसीलिए पेपर सारे इन्हीं लोगों का सैंपल लेके बनाया जाता है, इन्हीं लोगों के आइडियाज लिखे जाते हैं, इन लोगों के बारे में चीजें लिखी जाती हैं। तो एनी अदर कल्चर, बीट लैटिन अमेरिकन कल्चर, बीट अफ्रीकन कल्चर या एशियन कल्चर, उनके बारे में आपको सोशल साइंसेज वगैरह के डोमेन में उतनी ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। तो अकेडमिया का व्यू जो है, वो इस
पर्टिकुलर जो आबादी वाले लोग हैं, वियर्ड डेमोग्राफिक जिसको कहा जाता है, वेस्टर्न इंडस्ट्रियल डेमोक्रेट, राइट, ये जो है पॉपुलेशन, जो आबादी का दुनिया की बहुत छोटा सा हिस्सा है, वो डोमिनेट करता है। अब वो पूरे का पूरा जो डिसिप्लिन है सोशल साइंसेस का, या इवन आप फिलोसफी में भी बहुत ज़्यादा जोड़ सकते हो, वो ये डोमिनेट करता है, पॉपुलर डिस्कोर्स को डोमिनेट करता है उनका व्यू। और उनके व्यू के अंदर एक खास चीज़ वो ये है कि वो एक तो इंडिविजुअलिस्टिक व्यू रखते हैं, और दूसरा चीज़ों को एज एन ऑब्जेक्ट देखते हैं, एज अ होल किसी सिस्टम को वो पूरा नहीं देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कार को देखेंगे तो कार के अंदर में वो इंडिविजुअल सिस्टम्स को देख पाएंगे, कार का टायर देख पाएंगे, कार का शीशा देख पाएंगे, कार का बोनट देख पाएंगे, कार का स्टीयरिंग व्हील देख पाएंगे, और उनको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। लेकिन द रिलेशनशिप बिटवीन पार्ट्स और कैसे सिस्टम वर्क करता है, ये इतने अच्छे से वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। वो व्यू की प्रॉब्लम है, इट्स साइकोलॉजिकल इशू जो स्टडीज ने प्रूव किया है। और ये उससे जुड़ा हुआ व्यू जो आता है यूनिवर्सलिस्ट या ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ ट्रेडिशन, वो इससे बिल्कुल कनेक्टेड है, बहुत क्लोजली कनेक्टेड है इससे। क्योंकि यूनिवर्सलिस्ट व्यू में ये माना जाता है कि ये जो व्यू है पर्टिकुलरली है मेरा व्यू या वेस्टर्न लिबरल व्यू है, ये एक ऐसा व्यू है जो दुनिया में सभी जगह एप्लीकेबल है, और ये सभी जगह अच्छा रिजल्ट देगा। जो इस व्यू को फॉलो नहीं करता, हमें उनको करेक्ट करने की जरूरत है। ये व्यू आप ओल्ड अब्राहमिक फेथ्स के अंदर में भी देख सकते हो कि दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। तो क्रिश्चियनिटी इज द ओनली ट्रू ट्रू फेथ, ये एक मतलब एक्सियोमेटिक बिलीफ होता है। तो आप जब ट्रेडिशन को देखते हैं ना, तो ट्रेडिशन के अंदर में कुछ कोर बिलीफ्स होते हैं, इंक्लूडिंग साइंटिफिक जो ट्रेडिशन है उसके अंदर में कुछ कोर बिलीफ्स होते हैं, आप उनको टच नहीं कर सकते हो। उनको आप टच करने को जाओगे तो एक आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स आ सकता है, बी वो सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो आपके पूरे के पूरे साइंस और लिबरलिज्म, एनलाइटनमेंट, इनके कोर आइडियाज उसके ऊपर अटैक करता है। कैसे अटैक करता है वो, तो साइंसेस का और लिबरलिज्म का और जो एनलाइटनमेंट फिलोसफी उसका ये है कि दुनिया के बारे में ज़्यादातर चीज़ें जानी जा सकती हैं, और अगर हम लोग अच्छी जानकारी प्राप्त करके उसके हिसाब से काम करेंगे तो ज़्यादातर रिजल्ट हमारे सही आएंगे, दुनिया में तरक्की हो सकती है। इस तरह के कुछ कोर बिलीफ्स हैं, वो बिल्कुल उसके ऊपर अटैक करता है, इस कोर बिलीफ्स के ऊपर पोस्ट मॉडर्निज्म। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि हर ट्रेडिशन के अंदर में कोर बिलीफ्स होते हैं, जिसको कोर कहते हैं। आप उसको अटैक आसानी से नहीं कर सकते, या उसके ऊपर अटैक करोगे तो बहुत उनके लिए, जो ट्रेडिशन में रहते हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है, डिपेंड करना चैलेंजिंग हो जाता है। अब मैं था इसके ऊपर, हाँ, ऑब्जेक्ट व्यू के ऊपर था, और ये बता रहा था सिमिलैरिटी उसकी कि वियर्ड जो वे ऑफ थिंकिंग है जो सोशल साइंसेज वगैरह में डोमिनेट करता है, इनके बीच में कनेक्शन बता रहा था। और यूनिवर्सलिस्ट व्यू पॉइंट्स, इन तीनों चीज़ों को मैं कनेक्ट कर रहा था। तो यूनिवर्सलिस्ट व्यू पॉइंट जो है, ये व्यू जो है, ये मेरा व्यू सही है, उसके अलावा और व्यू सही नहीं है, या अगर कोई दूसरा व्यू रखता है तो उसको थोड़ा सा करेक्ट करने की ज़रूरत है, ये व्यू पॉइंट। और दूसरा ऑब्जेक्ट व्यू पॉइंट, कि इंडिविजुअल पार्ट्स को देखना, वो कैसे सिस्टम से कनेक्ट करते हैं उसको नहीं देखना है। ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है, क्योंकि किसी भी मेजर ओल्ड सोसाइटी, या आप ये कह सकते हैं ऐसी सोसाइटी जो बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनी है, वहाँ बहुत सारे कनेक्शन होंगे, बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होंगे, और कैसे वो वर्क करते हैं, वो एक क्योटिक सिस्टम होता है। लेकिन उस सिस्टम को कॉम्प्लेक्स सिस्टम बोलते हैं, उसको समझना मुश्किल होता है, लेकिन आपको जरूरत है उसको समझने की। ये टिपिकली उस वियर्ड वाला जो फ्रेमवर्क है सोचने का तरीका, उसके अंदर वो समझ नहीं सकते हैं, और इसीलिए वो अलग तरीके से क्लासिफिकेशन करके करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो टेबल बनाएंगे, उसमें क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे चीज़ों को, टिक क्रॉस करके लोगों को या प्रैक्टिसेस को क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे, रैशनल रैशनल वगैरह वगैरह, तरह तरह के लेबल्स लगते हैं, और फिर उसके बाद उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है अप्रोप्रिएट। या आप हिस्ट्री में देख सकते हैं, एटलीस्ट भारत में सेंसस वगैरह के साथ में यही हुआ है, ये एग्जाम्पल बिल्कुल आप देख सकते हैं। 1800s में जो भारत में सेंसस हुए थे, उससे पहले बहुत ज़्यादा छोटे छोटे ग्रुप थे, उनको समझ में नहीं आया इतने सारे छोटे छोटे ग्रुप कैसे एक दूसरे के साथ, उनको उनका एडमिनिस्टर करना था कम से कम मैन पावर के साथ में। इतने छोटे छोटे ग्रुप रहेंगे तो नहीं, इसलिए क्लासिफाई करना है, सिंप्लीफाई करो, 10-12 ग्रुप को मिला के एक में डाल दो। तो इस तरह से उन्होंने सेंसस के अंदर में प्रैक्टिस करने की शुरू की थी। लोगों ने बताना, लोगों ने सवाल पूछने किया था, ये टेबल में मेरे पास ये कॉलम है, ये कॉलम, ये कॉलम, लोगों ने समझा नहीं कि मेरी जो जाति है वो किसमें आती है, इसमें भी आती है सरकार, इसमें भी आती है, इसमें भी आती है। वो जो सर्वेयर है वो परेशान हो गया, उसमें किसी एक बॉक्स में टिक कर दिया। तो इस तरह की चीजें होती हैं जब आप पोस्ट कैटेगराइजेशन करने के लिए जाते हो। तो ये कैटेगराइजेशन वाली जो प्रॉब्लम है वो ऑब्जेक्ट व्यू के साथ में आपको दिखेगी। और किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कि हो सकता है कि कोई एक एलिमेंट की मल्टीपल आइडेंटिटीज हो सकती है, लेकिन वो एक एक पर्टिकुलर पकड़ के फोर्स फिट करने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीजें जब कनेक्ट होती हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं किसी भी ट्रेडिशन के खिलाफ, और फिर वो ऑटोमेटिकली किसी भी अदर ट्रेडिशन का दुश्मन हो सकता है, जाने अनजाने जैसे भी कहें, विदाउट मैलिशियस इंटेंट भी, विद गुड इंटेंशन भी, किसी भी ट्रेडिशन को पकड़ के क्रिटिसाइज कर सकता है, उसके कोर आइडियाज को पकड़ के क्रिटिसाइज कर सकता है, ये बोल के कि भाई तुम्हारा जो कोर आइडिया वो तो झूठ है, देयर कैन बी नो अदर फेथ अदर देन
क्रिश्चियनिटी, आपका जो फेथ है वो झूठ है, आपके पास कोई कोई कोर है ही नहीं, अब तो ये पेगन हो, आप तो हिदन हो, आपको सुधार करने की जरूरत है, राइट। इस तरह से आपका जो सो कॉल्ड बिलीफ है वो रैशनल नहीं है, तो आपको सुधार करना होगा, आप मेरा बिलीफ अपनाइए। तो ये एक टिपिकल फ्रेमवर्क है जो ऑब्जेक्ट व्यू के अंदर यूनिवर्सलिज्म से आता है, आपको कई बार दिखाई देता है, आपको आप उसको सामने देखते भी हैं। इसीलिए जो ये इनकी तरफ से ट्रेडिशंस का क्रिटिसिज्म जब आता है, पर्टिकुलरली नॉट ऑन ग्राउंड्स ऑफ हार्म बट ऑन आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स, तो सतर्क हो जाइए, कान खड़े कर लीजिए, खतरे की घंटी बजना शुरू हो जानी चाहिए आपके दिमाग में। आपके दिमाग में सिर्फ एक सवाल उठना चाहिए कि भाई हार्म क्या है, ये मेरे को एक्सप्लेन करो, उसका डेटा दो, अदरवाइज मुंह चुप रखो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो मैंने आपको कुछ एक मोटी कॉन्सेप्ट्स आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो एक उसके अंदर में है ऑब्जेक्ट व्यू ऑफ ट्रेडिशन, राइट, उसके बाद लिव्ड एक्सपीरियंस इन ट्रेडिशन, तो ये मैंने डिस्टिंक्शन एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ट्रेडिशन साइंस के अंदर में भी पाए जाते हैं और उसी तरह से डिफाइन करते हैं, हर ट्रेडिशन का एक कोर होता है जिसको आप आसानी से चैलेंज नहीं कर सकते हो। फिर मैंने ये भी बताने की कोशिश की कि किस तरह से आप क्रिटिसाइज कर सकते हो। तो एक रहता है एकेडमिक क्रिटिसिज्म और एक होता है एक्शनेबल क्रिटिसिज्म। एकेडमिक क्रिटिसिज्म में आप उसके कॉजेज के ऊपर बात कर सकते हो, उसकी हिस्ट्री के ऊपर बात कर सकते हो, अलग अलग चीजों के ऊपर बात कर सकते हो, कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर बात कर सकते हो। लेकिन जब एक्शन के डोमेन में जाते हो, जहाँ पे जुडिशरी काम करती है या हमारा लीगल सिस्टम काम करेगा, पार्लियामेंट वगैरह काम करेगी, वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ हार्म को देखेगा। ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो जब जब भी आप इस तरह के कोर्ट के इंटरवेंशन वगैरह देखते हैं, तो या इवन कोई लिबरल रैशनल क्रिटिक देखते हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सवाल कीजिए। यूनिवर्सलिज्म के बारे में सवाल कीजिए कि आपका जो यूनिवर्सलिज्म है, क्या ये मेरे इसको अलाउ करेगा अदर टाइप्स ऑफ फेथ। आइडियोलॉजिकल होना ये चाहिए कि लिबरलिज्म इज द बेस्ट सिस्टम जिसके अंदर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिलीफ सिस्टम्स एग्जिस्ट या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिशन एग्जिस्ट करके फ्लरिश कर सकते हैं। बाय डेफिनेशन वो सबसे अच्छा सिस्टम होना चाहिए। लेकिन जो वियर्ड व्यू पॉइंट है, यानी कि वो जो मैंने डेमोग्राफिक बताया उसका व्यू पॉइंट है, इंडिविजुअलिज्म वाला व्यू पॉइंट है, किसी सिस्टम के कनेक्शन को ना समझने वाली बीमारी है, यूनिवर्सलिज्म का प्रॉब्लमेटिक परछाइयाँ हैं जो उनके पुराने फेथ से जुड़ी हुई सोसाइटी में आ गए, वो जो लूम कर रही, इन सारी चीज़ों की वजह से लिबरलिज्म अफेक्ट हो जाता है। तो जब भी लिबरल्स क्रिटिक करना चाहें तो ये दो ग्राउंड्स बिल्कुल क्लियर कीजिए कि मैं एकेडमिक डोमेन में क्रिटिसाइज कर रहा हूँ या मैं एक्शन मांग रहा हूँ। जब एक्शन मांग रहा हूँ एक्शनेबल डोमेन में है तो फिर मैं हार्म को स्पेसिफाई करूंगा, डेटा दूंगा।